Hello my dear student, today in this lecture video of standard 8th lesson number 7 metals and non-metals. Okay, before going to directly on chapter, we are going to see what the two questions are given in recall. Okay, so let us read the first question. What are the three types in which the elements are generally classified? ऐसे कौन से types है जिसमें कि एलिमेंट जो है क्लासिफाइड है? तो एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू व्हाट? मेटल्स, non-metals and metalloids. Okay, so what they have, these elements, the elements are classified into what? First is metals, second is non-metals, and third is metalloid. Okay, means in this chapter we are going to learn about the metals, non-metals and metalloids, means some basic properties also, right student? So what is the next question? And you know what do you mean by elements? आपने elements तो पढ़ा ही था, right? In previous lecture video, means in previous lesson we already learn about the elements. एलिमेंट्स मतलब जो सिंगल टाइप ऑफ मैटर से बना वो सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं. जस्ट लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब एलिमेंट्स है. और इन लोअर क्लासेस मीन्स इज ऑलरेडी इन 7th स्टैंडर्ड यू लर्न अबाउट द टॉपिक एलिमेंट्स, राइट? ओके, so what is the next question here? What are the metals and non-metals that we use in everyday life? ऐसे कौन से metals हैं और जो non-metals हैं हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है, सो मेटल्स जो होते हैं जस्ट लाइक हम कॉपर, ठीक है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्लैटिनम, ये सब क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं जो कि हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज़ द आंसर of the second question? That is copper. Okay, that is copper, iron, Fe, okay, gold, then silver, then aluminium, then we can say that magnesium, calcium and platinum. Okay, these are the metals. And what are the non-metals we are using in everyday life? Yes, that is oxygen, nitrogen, carbon and diamond. Okay, these are the non-metals. So in this lecture video we are going to see why we are saying these all the elements as metals and why we are saying these elements as a non-metals, right student? So actually the metals are what? So metals are a good conductor of heat and electricity, right student? और जो non metals से it did not conduct any types of electricity. And the third, metalloid means it remains in between both metals and non-metals. Okay, so let us go through the chapter. What is written here? All the objects or materials in the world are made from elements, compounds or their mixture. मतलब जो भी एलिमेंट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स या तो कोई भी मटेरियल जो वर्ल्ड में प्रेजेंट होते हैं वो किससे बने हुए रहते हैं? या तो वो कुछ एलिमेंट्स हो गए, या तो कंपाउंड्स हो गए, या तो कोई मिक्सचर से बने होते हैं. जैसे कि एलिमेंट्स का मतलब मैंने आपको समझाया था. एलिमेंट्स मतलब जो सिंगल टाइप ऑफ मैटर से बने वो सब्सटेंस को एलिमेंट्स कहते हैं. और जब दो और मोर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली, सो वो क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड. और व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन फिजिकली और देर इज़ नो केमिकल रिएक्शन इन बिटवीन दिस दैट एलिमेंट, देन मिक्सचर इज़ फॉर्म, है ना? इस टाइप में होते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर. उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफाइड किया एलिमेंट्स को 3 टाइप ग्रुप में, 3 जनरल टाइप्स में. एक तो मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में, राइट? सो व्हाट आर मेटल्स? अब मेटल्स के एग्जांपल्स देखे थे. यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर मेटल्स. सो वी ऑलरेडी राइट दैट व्हाट आर द मेटल्स. कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्लैटिनम are the metals. That only it was written here. Metal have luster. What do you mean by luster? लस्टर मीन्स शाइन. ओके, मेटल्स कैसे होते हैं? लस्टर होते हैं. लस्टर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? शाइनी नेचर में होते हैं. ठीक है, सो हाउ इट इज़ शाइनी वी विल गो when we read the physical properties of metals, that time we can understand what do you mean by luster. In this now only just you learn what do you mean by luster. Luster means shine.
द मेटल्स आर हार्ड, और मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. वायर और शीट कैन बी फ्रॉम देम मेड मेटल from, okay, wire or sheet can be from they made metal. Metals are good conductor of heat and electricity. Metals कैसे होते हैं, it is a good conductor of, they are good conductor of heat and electricity. Metals lose their valence electron to produce positive charge ion, that is cations. Okay, now we are going to the physical property of metals. Okay, this is the main topic what we are actually going to discuss in this chapter, that is the physical properties of metal and physical properties of non-metals also. So what is the first physical property? Under ordinal temperature metals stay in solid state. Okay, means generally all the metals exist in solid state. This is the main physical property, means physical properties of metal. क्या है फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या है, फिजिकल स्टेट. Physical state, that all metals exist in solid state. ये इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कि हर एक मेटल कैसे एग्जिस्ट होता है, सॉलिड स्टेट में. लेकिन हाउ एवर मेटल्स लाइक मर्क्यूरी एंड गैलियम आर एक्सेप्शनल केस. मतलब सारे जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड में होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं. लेकिन जो मर्क्यूरी और गैलियम जो होता है आर एक्सेप्शन होता है, क्योंकि ये जो गैलियम को जब हम थोड़ा भी हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में हो जाता है, इवन एट रूम टेम्परेचर में. इसीलिए ये दोनों एक्सेप्शन केस है. कौन, मर्क्यूरी एंड गैलियम. हैव यू अंडरस्टूड दिस टुडे? नाउ लेट अस गो थ्रू लस्टर. The second property is what here? The second property is luster. And luster I already told in here in this paragraph. Luster मतलब क्या होता है, शाइनी नेचर में होना चाहिए, ठीक है. मतलब मेटल्स हैव अ luster. Luster means शाइन में होता है. शाइन मतलब कैसे, जैसे कि टेक कॉपर वेजल एट योर होम, स्क्रब देम विथ लेमन एंड रिंस विथ वाटर. ठीक है, आपके घर में कोई भी कॉपर की चीज़ होती है, अगर आपने उसको लेमन से स्क्रब किया और उसको वॉश किया तो आप देखोगे उसमें एक टाइप शाइन आती है, ठीक है. तो ऑब्जर्व द लस्टर बिफोर एंड आफ्टर क्लीनिंग. ठीक है, पहले धोने के पहले और धोने के बाद उसकी शाइनी नेचर देखो. सो उससे क्या होता है, लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लीन और फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल एंड द मेटल लुक लस्ट्रस. जब उसके बाद अगर उसको आप कम्प्लीटली अपने वॉश कर लिया, उसके बाद आप देखोगे तो उसमें कम्प्लीटली एक शाइनी नेचर्स में दिखेगा. ओके, सो दैट्स वाई वी कॉल्ड हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर दैट द metals are having luster. Okay, second property क्या है, metals are having luster, that is shiny nature. Now next property is about the hardness. हार्डनेस में भी एक दो एक्सेप्शन केस है. हार्डनेस यानी मेटल जो होते हैं पूरे बहुत हार्ड होते हैं, पक्के, ठीक है. जनरली मेटल्स आर हार्ड नॉट सॉफ्ट, वो सॉफ्ट नहीं होते. एक्सेप्शन क्या होता है कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ठीक है, वो आर सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली कट बाय ए नाइफ. जो सोडियम और पोटेशियम रहते हैं वो हार्ड नहीं रहते, वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं. दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी. ओके, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट. ओके, उसकी फिजिकल स्टेट कैसे होती है, इन सॉलिड स्टेट में होती है. बट एक्सेप्शन केस क्या आती है, मर्क्यूरी और गैलियम जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होते हैं हीट करने के बाद. सेकंड लस्टर होते हैं, लस्टर मीन्स शाइनी नेचर में होते हैं. एंड थर्ड इज़ हार्डनेस, वो हार्ड होते हैं. एक्सेप्शन केस क्या था कि सोडियम और पोटेशियम जो दो हैं वो सॉफ्ट होते हैं. Then next is about the ductility. Ductility means what? Okay, ductility का मतलब होता है जैसे कि एक एग्जांपल ले लो. आपने सपोज ये देखो, हैव यू एवर गॉन टू ए गोल्ड स्मिथ शॉप. आप कभी गोल्ड स्मिथ के शॉप में गए हो? येस, बिकॉज इन दैट दे आर मेकिंग अ वायर. ओके, एक्चुअली डक्टिलिटी मीन्स वो होता है वायर होता है, और मेलेबिलिटी मीन्स क्या होता है, शीट होता है. ओके, ये
दिस टू थिंग, दिस टू मेन पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड. डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है, वायर, एंड मेलेबिलिटी मीन्स क्या होता है, शीट होती है. डक्टिलिटी में हम वायर तैयार करते हैं, ठीक है. हैव यू इवन सीन द गोल्डस्मिथ मेकिंग अ वायर ऑफ गोल्ड और सिल्वर. व्हेन अ मेटल इज पुल्ड थ्रू अ होल इट्स वायर इज फॉर्म, ठीक है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी. मीन्स डक्टिलिटी में क्या तैयार होता है स्टूडेंट्स, वायर तैयार होता है. एंड मेलेबिलिटी में क्या तैयार होता है, शीट तैयार होती है. ओके. टेक एन आयरन नेल, प्लेस इट इन अ प्लेटफॉर्म एंड कीप ऑन हैमरिंग. कोई भी एक आयरन नेल को आप हैमरिंग उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से हथौड़े से मारोगे तो वो क्या होगा, एक शीट तैयार होता है. तो वो शीट जो तैयार होता है दैट वी कॉल्ड एज ए मेलेबिलिटी. हैव यू अंडरस्टूड. लस्टर मीन्स शाइनी, हार्डनेस मीन्स सो हार्ड. ओके. एक्सेप्शन केस यू हैव टू लर्न इन फिजिकल स्टेट एंड इन दिस वन इन हार्डनेस एक्सेप्शन केस आते हैं. एंड डक्टिलिटी मीन्स making a wire. Malleability means to make a sheet. Okay. Have you understood. So malleability can be beaten into, can be obtained by beaten. Okay. तो exception case क्या है यहाँ पे. So then after that we have to see the conduction of heat. Students, tell me from metal heat conduct होती है कि नहीं. सबसे पहले तो आप बताइए कि metal में heat conduct होता है कि नहीं. Okay. So let us read here. Take a copper plate, fix some wax at one its end, heat the other end and observe what happen. ठीक है. एक कॉपर प्लेट ले लो. अगर सपोज ये कॉपर प्लेट है और मैंने यहाँ मीन्स ये कॉपर प्लेट है, अगर मैंने यहाँ से एक मतलब मोमबत्ती जलाया और इसको हीट किया फ्रॉम हियर, सो व्हाट हैपन, स्लोली जो हीट है ना वो यहाँ तक प्रोड्यूस होगी और ये पूरा क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा. तो मतलब क्या है, इट कंडक्ट द इलेक्ट हीट. मीन्स इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. आपके घर पे जो भी वायर्स होते हैं, जो सिल्वर कॉपर है ना, कॉपर वायर होते हैं ना, दैट इज़ ये सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके. नाउ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है. विच मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Okay. Metals are also a good conductor of heat and electricity. Here I already told. Now density means mass होता है. density मतलब क्या होता है, mass होता है. ठीक है. Metals have high density. सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर एक्सेप्शन. इसमें जो एक्सेप्शन केस है, किसकी मास नहीं होती है, सोडियम की, पोटेशियम की और लिथियम में मास नहीं होता है. बट अदर्स मेटल्स आर और सो मच डेंसिटी मीन्स दे हैव द मास एंड हैव लोअर डेंसिटी दैन वाटर. द डेंसिटी ऑफ लिथियम की कितनी है, 0.53 cc. ओके. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखेंगे, जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. मेटल्स जो होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसे होता है, हाई होता है. एक्सेप्शन क्या है, मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम और पोटेशियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है. ठीक है. अब बात आती है सोनरिटी. ओके. स्टूडेंट्स, कैन यू ऑब्जर्व डैट if in my hand any type of metal is there and if I strike. ओके. अगर मैंने वो मेटल को स्ट्राइक किया कोई भी एक हार्ड सब्सटेंस के साथ, तो क्या होगा, उस टाइम क्या होता, वी आर गेटिंग मीन्स सच अ डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड. ओके. एंड इफ़ यू प्रोसीड सेम एक्टिविटी विथ नॉन मेटल, उसके क्या होता है, नॉन मेटल के साथ वो एक्टिविटी करोगे तो कुछ साउंड आएगा कि नहीं आएगा. बट एक मेटल्स मीन्स हार्ड सब्सटेंस के साथ में अगर स्ट्राइक किया जाए तो क्या आएगा, एक साउंड प्रोड्यूस होती है और उसको कहते हैं सोनरिटी. अंडरस्टूड. सो दैट्स वाई वी कॉल्ड हैज ए मेटल्स आर सोनरस. सो बिकॉज सोनरस क्यों होते हैं, क्योंकि दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग. जब उसे कोई भी चीज़ से हैमरिंग मतलब मारा जाएगा तो इट प्रोड्यूस ए साउंड. मीन्स सोनरिटी मीन्स क्या होता है, प्रोड्यूस साउंड व्हेन गेट स्ट्राइक बाय हार्ड सब्सटेंस. मतलब समझ में आया कि सोनरिटी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आवाज़. कब, जब हम उसको स्ट्राइक करेंगे किससे, बाय हार्ड सब्सटेंस. हैव यू अंडरस्टूड. दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ what metals. Have you understood. Now in the next lecture video we are going to discuss about the non metals and their physical properties of non metals. Okay students, so I'm going to stop here. Thank you.